So system of particles and rotational motion basically. So system of particles में मतलब basically सिस्टम तो हम लोग पढ़े भी हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़े थे, और अभी जब हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहे थे वहां पे भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़े थे कि भाई एक सिस्टम क्या होता है जहाँ पे बॉडी आपस में इंटरैक्ट करती है, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं. सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेवरल और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एक सेकेंड. Sorry, Bachchan. So, a well-defined collection of several or large number of particles which interact with each other is called system of particles. ठीक है? तो well-defined collection of several particles, कई सारे छोटे छोटे point masses मिल के system of particle बनाएगा, which interact with each other, है ना? एक दूसरे पे ये force भी लगाएंगे. There will be some interaction also between the particle, is called system of particle. Consider a system of n particles of masses m1, m2 और mn तक इसमें कई सारे particles हैं, let's say. Some of them may interact with each other and some of them may not. The particles which interact with each other apply forces on each other. जो interact करेंगे एक दूसरे पे force भी लगाएंगे. इसमें internal forces, the forces of interaction between a pair of ith and jth particle are known as are shown in the above figure. तो ये देखो ith particle है और ये jth particle है, तो एफ आई जे फोर्स जो आई पे जे के वजह से लग रहा है, एफ जे आई, ये वाला जो फोर्स है एफ जे आई है, और ये वाला जो फोर्स है एफ आई जे है. सो बेसिकली आई पे जो जे लगा रहा है फोर्स एफ आई जे, और जे पे जो आई लगा रहा है एफ जे आई हो गया. सो ये जो आयथ और जेथ पार्टिकल में फोर्सेस हैं, सिमिलर टू दीज अदर पार्टिकल्स में ऑल्सो इंटरैक्ट विथ ईच अदर. तो हम लोग तो एक कोई भी आर्बिट्ररी आयथ एलिमेंट और जेथ एलिमेंट के बीच में हम लोगों ने देखा है इंटरैक्शन. ये इंटरैक्शन किसी भी दो पार्टिकल के बीच में हो सकता है. Similar to these, other particles may also interact with each other. These forces of mutual interaction between the particles of the system are internal forces of the system. These internal forces always exist in pairs of forces of equal magnitudes and opposite direction. External forces are other than internal forces. External forces may also act on all or some of the particle. Here, by the term external forces, we mean a force that is applied on any one of the particle included in the system by some other body outside the system. ठीक है. So मतलब इन इनमें क्या है, एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होगा जो कि इनके जो आपस के इंटरेक्शन है उसके अलावा कोई फोर्स अगर लग रहा है, अदर देन इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स में ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑन ऑल और सम ऑफ द पार्टिकल. सारे पार्टिकल पे भी लग सकता है, उनमें से कुछ पार्टिकल पे भी लग सकता है. हियर बाय द टर्म एक्सटर्नल फोर्स वी मीन अ फोर्स दैट इज अप्लाइड on any one of the particle included in the system by some other body outside the system. Now, rigid body. So a rigid body is the system, is defined as a system of particle in which distance between each pair of particles remain constant with respect to time. That means the shape and size of the body do not change during the motion. A rigid body is an object that has fixed size and shape. So for every pair of particles in a rigid body, there is no velocity of separation or approach between the particles. In the figure shown, velocities of A and B with respect to ground are VA and VB respectively. तो रिजिड बॉडी क्या होता है? जिनका की शेप चेंज नहीं करता है ना. रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर, जो आपस में इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, मान लो हम लोगों ने एक पार्टिकल, एक बॉडी लिया, इस बॉडी में जो कई सारे पार्टिकल्स मिलके इस बॉडी को बना रहे हैं, इनके आपस की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एनी टू पार्टिकल्स
remain constant with time, that does not change with time. So that's what is written here. Distance between each pair of particles remain constant with respect to time. That means the shape and size of the body do not change during the motion. Now, a rigid body is an object that has fixed size and shape. तो ये जो rigid body है, it is an object which has fixed size and shape. For every pair of particles in a rigid body, so for every pair of particles in a rigid body, there is no velocity of separation or approach between the particles. In the figure shown, velocities of A and B with respect to ground are VA and VB respectively. तो अभी अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए ये A और B है, इसके जो velocities है वो VA और VB हो गया. In the above body, the rigid, if the above body is rigid, the distance between A and B is fixed. मतलब कि VA का इसके along जो velocity होगा वो क्या होगा, VA cos थीटा, और VB का इसके along जो velocity होगा VB cos थीटा 2. तो VA cos थीटा 1 is equal to VB cos थीटा 2. दोनों velocity सेम होंगी. ये जो है ना, ये जो इसके along है, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन के along जो velocity है वो दोनों का सेम होगा, तभी उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा और उनके बीच में कोई जो ये दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ. सो दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी, है ना. सो दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी अ रिजिड बॉडी. ठीक है. ना प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दो तरीके का मोशन होता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन, एक रोटेशनल मोशन. Pure translational motion का मतलब a body is said to be in pure translational motion if the displacement of each particle is same during any time interval. मतलब ये जो पूरा पार्टिकल है ये प्योर ट्रांसलेशनल होगा अगर ये फर्स्ट वाला जो है इतना डिस्टेंस मूव किया, सेकंड वाला भी जो डिस्टेंस मूव किया, ठीक है. सो these distances moved by each of the particle and the center of mass remains the same. ठीक है. If the displacement of each particle is same during any time interval, however small or large, all particles move in circle about a fixed point. ठीक है. Now in this motion, all particles have same velocities and acceleration at an instant. For example, motion of a bullet fired into gun. ये रोटेशनल का होगा. Now pure rotational motion में क्या होगा, यही कि a body is said to be in pure rotational motion if the perpendicular distance of each particle remain constant from a fixed line. ठीक है. तो एक फिक्स्ड लाइन से, जैसे ये फिक्स्ड लाइन है, इससे जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का. ठीक है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, हर पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेम रहता है. So pure translation motion तब होगा if the perpendicular distance of each particle remain constant from a fixed line or point and do not move parallel to the line, and that line is known as axis of rotation. ये जो इसके थ्रू पास कर रहा है going inside the plane of paper, ये axis of rotation हो गया. All particles move in circle about a fixed point. इस point के about ये सारे particles circular motion में move करें. ठीक है. All particles move in circle about a fixed point in this angular displacement theta, angular velocity omega, and angular acceleration alpha. ठीक है. Motion of all particles have same angle theta. ठीक है. So जितने भी पार्टिकल है उन सब का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. ओमेगा एंड अल्फा at an instant will be same. Example, a rotating ceiling fan, arms of a clock, ये सब example है pure rotational motion का. अब इसके बाद है combined translational and rotational motion. तो हम लोग जो भी
रियल लाइफ सिनेरियो देखेंगे वहां पे देखो सब में क्या है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन होता है. ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन भी होता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है. So a body is said to be in translational and rotational motion if all the particles rotate about a fixed axis of rotation and the axis of rotation moves with respect to ground as well. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सारे पार्टिकल मूव भी करेगा और उसके अलावा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी खुद भी मूव करेगा. तो उस केस में ये प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, टायर ऑफ अ कार इज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों होगा टायर ऑफ अ कार. सो फॉर एग्जाम्पल, टायर ऑफ अ कार इज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन. Now center of gravity. So center of gravity is the point at which whole weight of the system is supposed to act. ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कोई भी सिस्टम का, ठीक है, इज द पॉइंट एट विच, मान लो सारा वेट किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना. जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बॉडी का हमारा बेली बटन के पास है, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंग करेंगे तो वहां पे जो नेट मूवमेंट है, मतलब उसमें वो बैलेंस्ड रहेगा उस पॉइंट के अबाउट. सो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ वेट W1 एंड W2. दो पार्टिकल है, एक का वेट W1 है, दूसरे का W2 है. देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड एज W1 इंटू R1, मतलब ये वेट इंटू इसका पोजीशन वेक्टर, प्लस W2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2. ये हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी देगा. वहां देखो सेंटर ऑफ मास में M1 R1 कर रहे थे, यहाँ पे W1 R1. सो W1 को M1 G1 R1 कर रहे हैं, M2 G2 R2, और ये M1 G1 M2 G2. अगर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी सेम एवरीवेयर, मतलब स्मॉल जी का वैल्यू अगर दोनों जगह पे सेम है, G1 G2 बराबर है ना. इफ G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू G, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में होता है, वहां पे ये G कैंसिल हो जाएगा, G1 G2 के बराबर हो जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास के पोजीशन के बराबर ही होगा. मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेंगे. कब? जब G सेम है एवरीवेयर. सो thus if G is same everywhere, center of gravity and center of mass lie at the same point. Therefore, for practical objects, center of mass and center of gravity are not differentiable. ठीक है, तो हम लोग जो नॉर्मल सिनेरियोज में बात करते हैं वहां पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होगा, एक ही पोजीशन पे मानेंगे. ओके. अब हमारा रोटेशनल मोशन है. So rotational motion as shown in figure, consider a rigid body rotating about a fixed axis. मान लो इस axis के about ये पूरा एक rigid body है, ये rotate कर रहा है इस axis के about. ठीक है, all the points on it move in circles of different radii but common fixed axis. इसी axis के about जितने भी particles होंगे, चाहे ये particle है या ये particle है, कोई भी particle है, ये सब इसी axis के about rotate करेगा अगर जब ये rotation होगा, है ना. So all points on it move in circles of different radii but common fixed axis. Now consider 2 points A and B located on a body, है ना. दो points हैं, एक point A और दूसरा point B है. So consider 2 points A and B located on a body moving in different circles of radii R1 and R2, ठीक है, respectively. In a given time, angle theta they have turned will be same. So in a given time angle theta they have turned will be same, मतलब angular displacement same होगा, but the linear distance traveled by them are not equal. तो देखो ये A जो है और ये B जो है,
ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा होगा वो सेम होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में, बट लीनियर डिस्टेंस ए इज लेस देन बी बी. So we can conclude that all particles on rigid body have same angular velocity but have different linear velocities. तो एंगुलर जब भी कोई बॉडी एक रोटेशनल मोशन में मूव करेगा तो हर पार्ट जितना भी रिजिड बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का जो एंगुलर वेलोसिटी है सेम होगा, बट उनका जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगा. So as angular velocity of all particle is same with respect to a fixed axis, we generally talk about angular velocity of rigid body and not its individual particles. Now, angular kinematics of rigid body rotating about a fixed axis. So अगर हम लोग angular displacement देखें यहाँ पे, so it is defined as the change in angular position from theta 1 to theta 2 of the position vector of any point on rigid body with respect to any point on axis. Hence, the angular displacement delta theta is given as theta 2 minus theta 1. Okay. So it is defined as the change in angular position from theta 1 to theta 2, ये जो angular displacement है, of the position vector of any point on rigid body with respect to any point on the axis. तो ये हमारा angular displacement हो गया. If angular displacement is large, it is scalar. If it is very small, then it is treated as vector. Now, small angular displacement is a vector quantity. Its direction is along the axis of rotation and is given by right hand thumb rule. मतलब जिधर ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उधर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो डायरेक्शन हमारा थंब का है वो राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल बोल लो, उससे हमें डायरेक्शन निकलता है डेल्टा थीटा का. तो जब फिंगर्स को इधर कर्ल करोगे तो थंब ऊपर के तरफ होगा, तो डेल्टा थीटा का डायरेक्शन ऊपर के तरफ हुआ. जब ये यहाँ क्लॉकवाइज जाएगा तो क्लॉकवाइज में अगर फिंगर को कर्ल करोगे तो तुम्हारा जो थंब है वो नीचे की तरफ शो करता है, तो डेल्टा थीटा का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा. अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे. सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस थीटा 1, T2 minus T1. तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय टाइम टेकन. इंस्टेंटेनियस ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, इसीलिए टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर लिया. जब हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी के बराबर हो जाएगा. इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ये जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज, ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग रोटेशन दैट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, so average angular acceleration of the rotating body is given as in the interval T2 minus T1, average acceleration is net angular change in angular velocity by total time taken. So omega 2 minus omega 1, final angular velocity minus initial angular velocity by total time taken T2 minus T1. उसी तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी हो गया. अल्फा को हम लोग डी ओमेगा बाय डी टी लिख सकते हैं, या हम लोग ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग अल्फा को डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो ये तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, अगर हम लोग को डिफरेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. अब जो एनालॉजी बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक्स एंड लीनियर काइनेमेटिक्स अगर आप देखोगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स और लीनियर काइनेमेटिक्स में, पोजीशन क्या है, देखो लीनियर पोजीशन x हो गया, रोटेशनल पोजीशन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं.
डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, रोटेशन में डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी होगा, वहां पे डी थीटा बाई डी टी होगा। एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी की जगह यहाँ डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे। और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है ए डी टी प्लस सी, यहाँ अल्फा डी टी प्लस सी हो गया। और एक्स वी डी टी प्लस सी डैश है, थीटा ओमेगा डी टी प्लस सी डैश है। Now, equation of kinematics हमारा v is equal to v naught plus at या u plus at था, omega is omega naught plus alpha t, है ना। x is equal to x naught initial position plus ut plus half at square, theta is theta naught plus omega naught t plus half alpha t square, v square minus v naught square is equal to 2 alpha theta, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये इसका रोटेशनल एनालॉजी हो गया। तो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हम लोग लीनियर के केस में देखते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो मोमेंट ऑफ, जैसे इनर्शिया का मेजर मास होता है कब, जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है, वहां यहाँ पे जब रोटेशनल मोशन होगा तो इनर्शिया का मेजर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मतलब मास का इक्विवेलेंट, जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास का जो रोल है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम रोल होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? A property by virtue of which a body revolving about an axis opposes the change in rotational motion is known as moment of inertia. कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशन रिवॉल्व कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो प्रॉपर्टी बाय विच, ठीक है, सो प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द चेंज इन रोटेशनल मोशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ inertia. Now, the moment of inertia, the moment of inertia of a particle with respect to an axis of rotation is equal to the product of mass of the particle and square of perpendicular distance from the axis. So moment of inertia को जो हम लोग represent करेंगे, this is equal to moment of inertia is equal to m into r square. किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास of the particle and square of the perpendicular distance from the axis. मान लो r है distance यहाँ से, तो m r square हो जाएगा. As shown in the figure above, consider a particle of mass m whose perpendicular distance with axis is r. Its moment of inertia about axis is given by I is equal to mr square. So moment of inertia को I से represent करते हैं. This is equal to mr square. Second है, the moment of inertia of a system about an axis of rotation is equal to the sum of moment of inertia of all the particles of the system about the axis of rotation. As shown in figure below, consider a system of n particles having masses m1, m2, m3, mn with r1, r2, r3, rn be their respective perpendicular distances from the axis. Right? तो ये अलग अलग particles हैं m1 से लेके mn तक, और इनका respective जो है ना, ये डिस्टेंस हो गया एक्सिस से. सो m1 का डिस्टेंस एक्सिस से r1, इससे r2, इससे r3. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस इज गिवन बाय I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और mn rn स्क्वायर, समेशन इसको कर देंगे, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर मिल गया. द SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वायर. Right, moment of inertia का जो SI unit है, that is kg meter square. Its CGS unit is gram per centimeter square. So gram centimeter square, sorry. तो यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल का देखा था mr स्क्वायर. अगर कई सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का देखना है तो सारे इंडिविजुअल जो डिस्क्रीट मासेस हैं, उन सब मासेस का जो इस एक्सिस से डिस्टेंस है,
वो डिस्टेंस निकाल के हम लोग एड अप कर देते हैं, तो समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर हमेशा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स का, जिनका कि मासेस m1 m2 m3 mn है और डिस्टेंस एक्सिस से r1 r2 r3 और rn है। अब डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखो यहाँ पे एम आर स्क्वायर है, मास रेज टू द पावर 1, लेंथ रेज टू द पावर 2, टाइम रेज टू द पावर 0, ये हो गया डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी और सिस्टम इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट सम एक्सिस, है ना, हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। सो बॉडी ऑफ गिवन मास, साइज और शेप डू नॉट हैव यूनिक moment of inertia, but it depends upon the choice and orientation of axis. So we always specify moment of inertia of a system or a body about a specific axis. We will learn that almost all rotational quantities are defined about with respect to some axis. So moment of inertia of a body depends upon the following factors. पहला हो गया mass of body, size of body, shape of body, position of axis, orientation of axis and distribution of mass about axis. So moment of inertia जो है किसी भी body का, ये इन सब factors पे depend करता है ना। पहला mass पे depend करेगा, size of the body पे depend करेगा, shape of the body पे depend करता है, पोजीशन ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस, किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पूरे बॉडी में, उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, टोटल मास m पे, साइज पे मतलब रेडियस पे डिपेंड हो गया, शेप ऑफ बॉडी क्या शेप है, सर्कुलर है या स्क्वायर है, क्या शेप है, पोजीशन ऑफ एक्सिस किधर है ना, कहाँ पे से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है या एज से पास कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या फिर z एक्सिस के अबाउट है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस, एक्सिस के रेस्पेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। The more is the distribution of mass with respect to axis of rotation, the more will be the moment of inertia, right? So moment of inertia does not depend on the following factor. किन factor पे नहीं depend करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता, एंगुलर एक्सेलरेशन पे नहीं डिपेंड करेगा, टॉर्क पे नहीं डिपेंड करेगा और एंगुलर मोमेंटम पे नहीं डिपेंड करेगा। मतलब ओमेगा, अल्फा, टॉ और एल, इन सब फैक्टर्स पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल पहला हम लोग करेंगे। टू हैवी पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2 आर सिचुएटेड, एक पार्टिकल है m1 यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल m2 यहाँ पे है, आर सिचुएटेड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन AB के परपेंडिकुलर प्लेन पे है, एट अ डिस्टेंस r1 एंड r2। इसका m1 का डिस्टेंस r1 है, m2 का डिस्टेंस r2 है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस दिस। तो हम लोगों ने किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर डिस्क्रीट पार्टिकल्स के केस में, मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट कह रहा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू m1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग m1 एंड m2, मतलब CD के अबाउट निकालना है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट हो गया, तुमको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD, m1 इंटू 0 स्क्वायर, m1 का CD से डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, वहीं पे CD के ऊपर ही लाई कर रहा है, प्लस m2 इंटू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू m1 इंटू 0 स्क्वायर 0 हो गया, m2 इंटू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD हो गया। थर्ड वाला, what is the moment of inertia of the system about an axis passing through m1 and m2। ठीक है, moment of inertia of system about an axis passing through m1 m2 मतलब दोनों से पास कर रहा है ऐसे, तो moment of inertia about EF
देखो m1 भी उसी पे लाई कर रहा है तो m1 इंटू जीरो स्क्वायर हो गया, और m2 भी उसी पे लाई कर रहा है m2 इंटू जीरो स्क्वायर हो गया, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब 31st वाला कह रहा है 3 लाइट रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 2l आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए ट्राइंगल। हमारे पास 3 रॉड मिलके एक ट्राइंगल बनाता है, ठीक है। 3 लाइट रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 2l, इसका भी लेंथ 2l, इसका भी लेंथ 2l, इसका भी लेंथ 2l, joined together to form a triangle. 3 particles A, B and C of masses m, 2m and 3m are fixed at the vertices of the triangle. यहाँ पे हो गया m, दूसरा यहाँ पे हो गया 2m, और यहाँ पे हो गया 3m। तो 3 पार्टिकल है जिसका मासेस m, 2m और 3m है। 3 particles are placed at A, B, C of masses this m, 2m and 3m are placed fixed at vertices of the triangle. Find the moment of inertia of the resulting body about an axis through A perpendicular to plane ABC. मतलब ये ABC हो गया, हम लोगों को इस पॉइंट के अबाउट एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू ABC के प्लेन, मतलब इस तरह से है ना। तो अब हम लोग को इसके अबाउट निकालना है, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास 2m इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2l का होल स्क्वायर प्लस 3m, और इसका भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l ही है। भाई एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ये भी है और एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला भी है ना, क्योंकि एक्सिस तो इन प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। यस तो ये 2l का होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 2m इंटू 4l स्क्वायर, और ये 3m इंटू 4l स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 ml स्क्वायर, 3 4 जा 12 ml स्क्वायर, दैट इज 20 ml स्क्वायर हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। Now let's go to the next one. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 vertices, 4 particles each of mass m are kept at the 4 corners of a square of edge है। एक स्क्वायर है, इसके स्क्वायर के 4 एजेस पे ये 4 पार्टिकल्स है, ठीक है। ईच ऑफ मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m। Find the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of square and passing through the center of the square. So 4 particles हैं, each of mass m, kept at the 4 corners of a square of edge A. Right. Find the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane and of the square and passing through the center of the square. इस point के about moment of inertia निकालना है। तो moment of inertia about O is equal to, ये देखो ये जो distance A है, ये पूरा जो length होगा this will be √2a। तो √2a डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे तो a बाय √2 हो जाएगा। तो ये जो इन सभी मासेस का जो डिस्टेंस है वो a बाय √2 है सेंटर से। सो आई नॉट इज इक्वल टू m इंटू a बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस 4 ऐसा सभी का ऐड हो जाएगा m बाय √2
m into a by root 2 का होल स्क्वायर, m into a by root 2 का होल स्क्वायर, m into a by root 2 का होल स्क्वायर. So moment of inertia is ma square by 2 plus ma square by 2, ma square by 2 plus ma square by 2. So net moment of inertia is 4 times ma square by 2. So this is 2 ma square. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now 33rd example, figure shows system of two particles of mass m1 and m2. So दो system of two particle mass m1 और m2 है, separated by a distance d. ठीक है. So ये जो particle है, this is separated by a distance d. Prove that the moment of inertia of two particles about their center of mass is given by this. तो इनके center of mass के about हम लोग को निकालना है. तो अभी अगर center of mass का जो पोजीशन है वो निकालना है, तो हमें पता है m1 r1 is equal to m2 r2 by m1 r1 is equal to m2 r2. ठीक है. अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, उससे अगर इसका डिस्टेंस r1 है और इसका r2 है, तो मास इनटू दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास m2 इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. अब हमें ये भी पता है, क्वेश्चन में दे रखा है r1 plus r2 is equal to d. राइट, टोटल डिस्टेंस दी है. अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, r1 r2 का वैल्यू निकाल लेते हैं. r1 is equal to m2 by m1 into r2. इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा m2 by m1 into r2 plus of r2 is equal to d. So m2 plus m1 divided by m1 into r2 is equal to d. So r2 is equal to m1d by m1 plus m2. और उसी तरह r1 अगर हम लोग निकालेंगे, r1 is equal to m2d. ठीक है. So this is m2d divided by m1 plus m2. अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square. अब ये वैल्यूज पुट कर लो r1 और r2 का. तो r1 का वैल्यू, r2 का वैल्यू ये हो गया, r1 का वैल्यू ये हो गया. इसमें डाल देते हैं m1 r1 स्क्वायर मतलब m2d by m1 plus m2 का होल स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर m1d by m1 plus m2 का होल स्क्वायर. अब हम लोग इसको करेंगे तो m1 m2 स्क्वायर d स्क्वायर by m1 plus m2 का होल स्क्वायर, m2 m1 स्क्वायर d स्क्वायर by m1 plus m2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज m1 m2 d स्क्वायर को कॉमन ले लो. यहाँ m2 बच गया, एक m1 बच गया, डिवाइडेड बाय m1 plus m2 का होल स्क्वायर. इसको कैंसिल करोगे तो बच जाएगा एक m1 plus m2. सो ये हो गया m1 m2 d स्क्वायर. ठीक है. सो m1 m2 d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 plus m2. क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको ना ये जो m1 m2 बाय m1 प्लस m2 है ना, इसको म्यू कहते हैं, राइट। तो इसको ये जो क्वांटिटी है कभी भी m1 m2 बाय m1 प्लस m2, इसको म्यू कहते हैं। म्यू मतलब रेड्यूस्ड मास इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना, पोजीशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज म्यू डी स्क्वायर, है ना। m1 m2 बाय m1 प्लस m2 को म्यू लिख लिया, ये म्यू डी स्क्वायर हो गया। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन में तुम देखोगे कि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है।
सॉरी बेटा। तो ये कर लिया ना तुम लोग, समझ गए? यस सर। ये एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लेना। सेम उसी तरीके का है जैसा अभी हम लोग कर रहे थे। वो जेनरिक था और यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं दो, मतलब HCl का एक मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखा है और उसमें हम लोग को करना है। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व दिस और फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास कल हम लोग आगे इसके करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब इसके आगे हम लोग, है ना, दोनों लॉ जो है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सब हम कल करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके, बाय।